والصلاة والسلام سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا يوم الدين. أما بعد فقد قال يا إمام جعفر صادق عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد لك الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزقه اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود والثبت لقدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهاجرهم دون الحسين عليه السلام صلوات محمد اجازت ہے تو شروع کریں. تو یہ جو مسلسل اشرا چل رہا ہے ماشاءاللہ سے، تو اس میں نے غور کیا ہے کہ مجھ سے بڑے بڑے جو عالم دین ہیں وہ خطابت کر رہے ہیں معرفت کربلا پہ یا معرفت اہل بیت پہ. تو میں بھی اسی موضوع کے ساتھ چلوں گا، میں موضوع کو تبدیل نہیں کروں گا، میں معرفت اہل بیت کے ساتھ چلوں گا. تو آج 8 محرم کی تاریخ ہے اور میں نے سوچا ہے کہ ایک شیر کے شیر بیٹے کے فضائل پڑھوں کہ جس کو دعائے زہرا بھی کہا جاتا ہے. تو آج عباس ابن علی کی میں چند فضائل پڑھوں گا. تو اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ عباس ہے کون، عباس کیا ہے، تو ہم لوگ جو ہیں فضیلت عباس پڑھ سکتے ہیں لیکن حقیقت عباس نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ حقیقت عباس پڑھنے کے لیے زبان کا حسین ہونا ضروری ہے، زبان کا حسین ہونا ضروری ہے. تو ہم لوگ فضیلت عباس پڑھ سکتے ہیں. پوچھا جائے عباس کون ہے تو بندہ جواب دے گا علی کا بیٹا، ام البنین کا لال. تو اب میں بتا رہا ہوں عباس کسے کہتے ہیں. علی کی طاقت، حسن کا حسن، حسین کی غریبی، سجاد کا تقوی، باقر کا علم، جعفر کی صداقت، کاظم کی ادا، رضا کی رضا، تقی کی تقاوت، نقی کی نقاوت، باروے کی غیبت. یہ جب 12 کے 12 فضائل ایک پیکر میں ڈھل کے علی کے آنگن چلے تو اسے عباس کہتے ہیں. عباس علی کا بیٹا ہو کے معصوم نہیں ہے تو 14 میں عباس کا نام کیوں نہیں ہے؟ تو آج میں اس منبر پہ ثابت کر کے جاؤں گا کہ عباس معصوم ہے. تو چلیے دلیلوں کی طرف بڑھتے ہیں. تو رسول کی حدیث ہے، اس میں رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کو آدم کا علم دیکھنا ہو، نوح کا فہم دیکھنا ہو، ابراہیم کا تقوی دیکھنا ہو اور یوسف کا حسن دیکھنا ہو، اگر تم کو ان سارے نبیوں کو دیکھنا ہو تو میرے بھائی علی کا چہرہ دیکھو. اس میں آدم کا علم بھی ہے، اس میں نوح کا فہم بھی ہے، اس میں ابراہیم کا تقوی بھی ہے، اس میں یوسف کا حسن بھی ہے. یعنی علی کے اندر ساری نبی کی صفتیں تھیں لیکن علی کا نام 1,24,000 میں تو نہیں. جیسے 1,24,000 میں نام نہ ہو کے بھی علی نبیوں کی صفتوں کا مالک ہے، ویسے ہی 14 میں نام نہ ہو کے عباس عصمت کا مالک ہے. عباس عصمت کا مالک ہے. تو معصوم ہونے کا پہلا قانون یہ ہے کہ معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کوئی نہیں پہن سکتا. معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کوئی نہیں پہن سکتا. اگر عباس معصوم نہ ہوتے تو صفین میں علی کا کرتا پہن کے نہ جاتے. روایتوں میں ہے کہ عباس نے علی کا کرتا پہنا لیکن لوگ کہتے ہیں کرتا نہیں پہنا. علی کا لال زرہ پہن کے اترا تھا. زرہ جانتے ہیں وہ لوہے کا کپڑا جو جنگ میں پہن کے اترتے ہیں. تو میں منبر کے علم پہ ہاتھ ہے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج تک علی کے کسی بھی بیٹے نے میدان میں زرہ پہنی نہیں. زرہ اسے پہننی پڑتی تھی جس کو سامنے سے وار کا ڈر ہو. ان کے سامنے کوئی ٹکتا تو وار کرتا، ان کے سامنے کوئی ٹکتا
तो वार करता, तो अली का कोई भी बेटा मैदान में ज़रा पहन के नहीं उतरा। एक रिवायत है कि सफीन में मालिक अस्तर गाजी के पास आए। गाजी की उम्र है 13.5 बरस, पहली जंग है। मालिक अस्तर ज़रा लेके गाजी के सामने आए, कहा ऐ शहजादे, आपकी पहली जंग है, मैं चाहता हूं कि आप मैदान में ये ज़रा पहन के उतरे। लेकिन ये ज़रा आपके कद से एक बलिष्ठ बड़ी है, एक हाथ बड़ी है। तो गाजी ने मुस्कुराकर पूछा कितनी बड़ी है? मालिक अस्तर ने हाथ रख के कहा इतनी बड़ी है। जहां से मालिक अस्तर ने हाथ रखा वहीं से गाजी ने लोहे की ज़रा को चीरा। लोहे की ज़रा को चीरना था। मालिक अस्तर ने कहा ऐ शहजादे, ये दाऊद नबी का मोज़ा था, वो लोहे को मोम करता था, तूने कैसे किया? अली के शेर बेटे को जला लाया, कहा वो जिसका नाम लेके करता था मैं उसका बेटा होके बेटा होके करता हूँ। अब कपड़ों पे बात आई है तो एक रिवायत है, दिमाग में आगे पढ़ना नहीं था लेकिन पढ़ रहा हूँ कि रसूल की वफात के बाद रसूल के जितने भी तबरुकात थे मौला अली के घर में रखे थे, तो उसमें अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलब ये थे मौला अली और रसूल खुदा के हकीकी चचा। वो आए अली के घर, कहा या अली, आपके घर रसूल के तबरुकात पड़े हैं, वो मुझे दे दीजिए, क्योंकि शरीयत के मुताबिक मैं इस खानदान का बुजुर्ग हूँ, तो ये सारी तबरुकात मेरे घर में होनी चाहिए। तो अली ने कुछ नहीं कहा, अली ने मुस्कुरा कर कहा चचा बैठिए। अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलब बैठे, अली गए संदूक उठा के लाए, फिर खोला, फिर कहा चचा जरा अपना अमामा उतारिए। उन्होंने अमामा उतारा, अली ने रसूल का अमामा उनके सर पर रखा, फिर रसूल की अबा उनके कांधों पर डाली, फिर रसूल की चादर उनको उड़ाई, फिर अली ने बस एक चीज कहा चचा ये सब पहन के बस एक मर्तबा उठ के दिखा दिए। रिवायतों में है कि अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलब ने ज़ईफी में जवानी का जोर लगाया था लेकिन अपनी जगह से हरकत नहीं कर सके। ये कहा कि ऐ अली, मेरे सर पे क्या रख दिया है कि मैं चल नहीं पा रहा। अली ने कुछ नहीं कहा, अली ने कहा हसन बाहर आ। हसन बाहर आ गए, तो फिर वही अमामा हसन के सर पे रखा, वही चादर हसन को उड़ाई, वही अबा हसन को पहनाई, हसन ने चलना शुरू कर दिया। फिर हुसैन बाहर आए, वही अमामा हुसैन ने पहना, वही चादर हुसैन ने चलना शुरू किया, फिर वही अमामा अली ने पहना, वही अबा अली ने ओढ़ी, फिर अली ने चलना शुरू किया। अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलब जाके दरवाजे पे खड़े हो गए, कहा या अली, मुझे इस बात पे हैरत नहीं है कि ये फजल मैंने नहीं उठाया और आपके बच्चों ने उठा लिया, मुझे इस बात पे हैरत है जो पहन रहा है उसको अबा पूरी आ रही है, ना किसी को छोटी आ रही है। अली ने कहा चचा ये नबूवत का बोझ है, इमामत के अलावा कोई उठा नहीं सकता। बात पढ़ते वैसे ही मासूम का बोझ सिवाय मासूम के कोई नहीं उठा सकता। चलिए दूसरे कानून की तरफ हिकमत के मासूम को गुस्ल सिवाय मासूम के कोई नहीं दे सकता। अगर अब्बास मासूम ना होते तो हसन को गुस्ल ना देते, हसन के गुस्ल में शरीक ना होते। तो इसीलिए रसूल खुदा ने अपने वसीयत में लिखवाया था कि या अली, मुझे गुस्ल सिर्फ आप दिएगा, क्योंकि मासूम के जिस्म में कुछ ऐसे राज छुपे होते हैं जो सिर्फ मासूम देख सकता है। और उसके बाद इमाम हसन का शहादत का वक्त करीब, उन्होंने इमाम हुसैन को बुलाकर कहा ऐ हुसैन, अगर मेरे बाद पदक मिले तो उसमें गाजी की औलादों का हिस्सा रखना, मेरे बाद पदक मिले तो उसमें गाजी की औलादों का हिस्सा रखना। अगली सतर सुनिएगा कि पदक मिले तो उसमें गाजी की औलादों का हिस्सा रखना, क्योंकि ये हमारी माँ का बेटा है, ये ज़हरा का बेटा है। अब ज़हरा का बेटा हो गया तो अब तो मासूम की कोई और दलील देनी नहीं है, यानी इन तीन दलीलों से अब्बास मासूम साबित हो गए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अब्बास के कुछ और फजाइल पे। अभी तो और पढ़ूंगा मैं कि अब्बास की पैदाइश, फिर अब्बास की जवानी, फिर अब्बास का शबाब, फिर अब्बास के हमले। अभी अब्बास को पढ़ा क्या गया है, ये 10 दिन का करबला में अब्बास,
چلیے شروع کرتے ہیں. تو پہلے شروع کرتے ہیں عباس کے ننیال سے. عباس کی ماں کا نام بی بی ام البنین. پھر عباس کے نانا کا نام حزام, اور ان کا تعلق تھا بنی کلاب سے. بنی کلاب قبیلہ تھا, اس سے تعلق تھا. تب بی بی سیدہ کی شہادت کے کچھ عرصوں بعد مولا علی نے اپنے بھائی جناب عقیل سے کہا کہ اے عقیل, مجھے ایک بہادر خاندان چاہیے. اب لوگوں نے اس کو پلٹا کے لکھ دیا کہ علی نے کہا تھا مجھے بہادر عورت چاہیے. علی نے یہ نہیں کہا تھا. علی کی خود کی حدیث ہے کہ مرد کا خوبی عورت کا عیب, عورت کی خوبی مرد کا عیب. یہ علی نے کہا ہے کہ مرد باہر اچھا لگتا ہے, عورت چار دیواری کے اندر اچھی لگتی ہے. مرد سخی اچھا لگتا ہے, عورت بزدل اچھی ہوتی ہے. لیکن جب گھر کے مرد نالائق نکل جائے تب عورتوں کو جنگ میں علی کے خلاف آنا پڑ جاتا ہے. اس موضوع پہ نہیں جانا, ممبر کے احترام میں آگے بڑھتے ہیں. تو اب میرا سوال ہے کہ یہ سوال مولا علی نے جناب عقیل سے ہی کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ اب کتابوں کا حوالہ دیں گے تو کتابیں کہیں گی کہ جناب عقیل علم الانصاب سے واقف تھے. ان کو سجروں کا اتنا علم تھا کہ وہ پیچھے سے دیکھ کے بتا دے کس کا بیٹا ہے, کس قبیلے کا ہے, کیسا خون ہے. وہ صرف شانوں کی چال اور پیروں کی چال سے بتا دیتے تھے. اب کتابوں نے یہ کہا, لوگ مطمئن ہو گئے. ٹھیک, لیکن میرا سوال وہی کا وہی ہے, لیکن سوال تبدیل ہو گیا کہ پوچھ کون رہا ہے؟ پوچھ وہ رہا ہے جس کی تلواریں سجرے جانتی ہیں, جس کی تلواریں سجرے جانتی ہیں. تو اب یہ ہے کہ مولا علی کا جناب عقیل سے یہ سوال کرنا بالکل ویسا تھا جیسا اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے. اللہ کو پتا تھا موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے, لیکن تب بھی اللہ نے پوچھا تو موسیٰ نے قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا. یہ عصا ہے, اس کو تکیہ بنا لیتا ہوں, اس کو کھڑا کر کے خیمہ بنا لیتا ہوں, اس سے جانور ہاک لیتا ہوں, اس سے دشمنوں کو ڈرا دیتا ہوں. اللہ نے پوچھا تھا کیا ہے, موسیٰ نے قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا. ایسے ہی فرشتوں نے پوچھا تھا پروردگار کون ہے, اللہ نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا. ہم فاطمہ کہا میں ایک ایسے خاندان کو جانتا ہوں جہاں کی عورتیں طیبہ ہیں, جہاں کی عورتیں طاہرہ ہیں, جہاں کے بچے گود میں نیزوں سے کھیلتے ہیں. علی نے مسکرا کر کہا مجھے بھی ایک ایسا ہی خاندان چاہیے. اب جناب عقیل بنی ہاشم قبیلے سے نکلے, گئے بنی کلاب کی اور پہنچے. وہاں پہ جناب حزام نے استقبال کیا. اس سمے یہ دور تھا کہ کوئی بھی مہمان آئے تو 3 دن سے پہلے واپس نہیں بھیجتے تھے. کہتے تھے کم از کم 3 دن تک رکیے تاکہ اپنے قبیلے میں جا کے ہمارے قبیلے کے فضائل پڑھیے, ہمارے قبیلے کے فضائل پڑھیے. تو یہ رواج آج تک کہیں نہیں ہے, لیکن کچھ جگہوں پہ ہے. کربلا جا کے دیکھ لینا. حسین نے کہا ہے میرا زائرین آئے تو کم از کم 3 دن تک رکے تاکہ وطن جا کے بتائے حسین بانٹتا کیسے ہے. 3 دن تک رکے. اب تیسرے دن کی شام آئی, نکلنے کا وقت. جناب حزام ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں, کہا اے بنی ہاشم کے چشم و چراغ, اے ابو طالب کے بیٹے, کیا ایسی مصیبت آ پڑی تھی کہ آپ کو میرے گھر آنا پڑا؟ جناب عقیل نے کہا کہ اے حزام میں چاہتا ہوں کہ بنی ہاشم اور بنی کلاب میں ایک بہت پرانی تعلق داری ہے. میں چاہتا ہوں اس تعلق داری کو رشتہ داری میں تبدیل کر دیا جائے. بنی کلاب کی ایک لڑکی کا نکاح بنی ہاشم کے ایک نوجوان سے ہو جائے. پھر حزام نے کہا کہ اے عقیل, بنی ہاشم کے ہر مرد میں, ہر فرض میں ایک علیحدہ فضائل ہے, لیکن میں جان سکتا ہوں کہ تم کس کی بات کر رہے ہو. پھر عقیل کا جلال آیا. عقیل نے سر اٹھا کر کہا ابو طالب کا بیٹا, بنی ہاشم کا چشم و چراغ, میرا بھائی علی ابن ابو طالب. علی کا نام والا تھا. حزام نے سر سے تاج کو اتارا, سجدے میں سر رکھا, کہا پروردگار تیرا شکر ہے, میرے گھر اس کا رشتہ ہے جو تیرے گھر آیا تھا.
आंसुओं से पूरा चेहरा भरा है। अकील ने पूछा कि ऐ हज़ाम, तुमको इतनी खुशी हुई थी कि तुम रोने लगे? हज़ाम ने कहा, खुशी हो क्यों ना, हमारे कबीले के मर्द गुलाम है और हमारी बेटी वहां जा रही है जहाँ फरिश्ते गुलाम है, जहाँ फरिश्ते गुलाम है। लेकिन जनाब हज़ाम कहते हैं कि ऐ अकील, मुझे रिश्ता बहुत पसंद है, लेकिन मुझे पहले अपनी बेटी से इजाजत लेनी पड़ेगी। ये है शरीफों का रिवाज, रिश्ता अली का भी हो, बेटी से पूछ लेते हैं पहले। तो अब जनाब हज़ाम मेहमान खाने से निकले, दौड़े दौड़े बीबी उम्मुल बनीन के हुजरे में गए। पहले रास्ते मिल गई जनाब समामा, बीबी उम्मुल बनीन की माँ। फिर जनाब समामा कहती है कि ऐ हज़ाम, खैरियत तो है? हज़ाम ने कहा, तुमको पता है कि हमारे मेहमान खाने में कौन आकर रुका है? कहा नहीं। कहा अली का भाई आया है, वो अली का रिश्ता लेकर आया है। समामा चौंक गई। कहा वो अली जो मलिका अरब खदीजतुल कुबरा का दामाद है, वो मेरा दामाद बनेगा? हज़ाम ने कहा हाँ समामा। फिर दोनों दौड़े हुजरे की तरफ। समामा गई बीबी उम्मुल बनीन के हुजरे में। हज़ाम सामने बाहर कान लगा के खड़े हुए हैं। समामा ने कहा कि ऐ उम्मुल बनीन, कुछ खबर है कि हमारे मेहमान खाने में कौन मर्द आके रुका है? तो बीबी उम्मुल बनीन ने सर उठा के कहा ऐ अम्मा, आपको पता नहीं, हमारे कबीले की औरतें इस चीज में दिलचस्पी नहीं रखती कि हमारे घर में कौन मेहमान आके रुका है। हम ये सब नहीं जानते कि कौन मर्द आके रुका हुआ है। तो तमामा कहती हैं, तू जानती नहीं वो कौन है? बीबी उम्मुल बनीन ने कहा कि ऐ अम्मा, अब आप मेरे हुजरे में आ गई हैं तो सुन लीजिए कि 3 रातें हो गई हैं एक बीबी मेरे हुजरे में आती है। अम्मा कल भी वो आई थी, उसका एक पल्लू मरियम ने उठाया हुआ था, एक पल्लू हव्वा ने उठाया हुआ था, एक पल्लू आसिया ने उठाया हुआ था। ऐ अम्मा, मैंने पूछा तू है कौन? उसने कहा ना फातिमा बिन्त मोहम्मद। उसने मेरी पेशानी का बोसा लिया, उसने एक चांद को मेरे गोद में दिया। कहा मुबारक हो, मेरे बेटे की माँ बन रही है। कहा मेरे बेटे अब्बास की माँ बन रही है। चलिए रिश्ता कबूल हो गया। अब शादी की मैं बहुत बधाई छोड़ते मैं जा रहा हूँ क्योंकि वक्त नहीं है। तो रिश्ता कबूल हुआ, शादी का दिन आया, अली बन रहे हैं दूल्हा। फिर कैसे दूल्हा बने? ताहा की लड़ियां, यासीन का सहरा, मुजम्मिल की मेहंदी, इन्नमा युरीदुल्लाह की चादर, इन्नमा वलियकुमुल्लाह की अंगूठी। फिर बारात निकली है तो बारात में कहीं इब्राहिम, कहीं दाऊद, कहीं यूसुफ। बारात निकली, पहुंची बनी तालाब में, अदब से बाराती रुक गए। अब देखा इस्तकबाल करने वालों में कहीं मरियम, कहीं हव्वा, कहीं आसिया। बारातियों को बैठाला गया, बैठ गए, खाना खिलाया गया। अब यहाँ पे एक जुमला कहूंगा कि पूरी कायनात को खिलाने वालों ने गाजी के नाना के घर में बैठ के खाया। मोहम्मद मौला अली ने अपना अक़्द खुद पढ़ा। ये मासूम का निकाह सिवाय मासूम की कोई नहीं पढ़ता। यही दौर था 8वें इमाम का कि जब मामून ने अपनी बेटी का रिश्ता दिया और कहा याहिया निकाह पढ़ा, तो इमाम को जलाल आया, कहा कौन है जो अली का निकाह पढ़ाएगा? कहा तू जानता नहीं मैं मोहम्मद का बेटा हूँ। तो इसीलिए मौला अली ने भी अपना अक़्द खुद पढ़ा। अब आई बीबी उम्मुल बनीन सैयदों के घर पर। अब सैयदों के घर पे आना तो मैं पता छोड़ रहा हूँ कि अब आई 4 शाबान की रात। 4 शाबान की रात आनी थी। बीबी उम्मुल बनीन ने कहा मुझे नहीं पता था कि अब्बास की विलादत होने वाली है। हमारे घर में कोई आसार नहीं थे कि अब्बास की विलादत होने वाली है। फिर मौला अली का हुक्म आया, कहा ऐ फातिमा, रात भर इबादत की शब्बेदारी करनी है। बीबी उम्मुल बनीन ने कहा हुक्म में इमाम था। मैं जानमाज बिछाकर बैठ गई, मैंने पढ़ना शुरू किया। अली हर थोड़ी देर में दरवाजे पे आते, कहा अब ये तस्बीह पढ़, अब ये तस्बीह पढ़। बीबी उम्मुल बनीन कहती थी मैंने तस्बीह पढ़ना शुरू किया। फिर एक बार आए मौला, कहा अब ये विर्द करो। बीबी कहती है मैंने जब विर्द करना शुरू किया तो एक नूर का हल्का मेरे चारों तरफ आ गया। फिर वो इतना उठा आसमान तक पहुंच गया। फिर मौला की आवाज आई, कहा ऐ फातिमा कलाबिया, बस थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद कर ले, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद कर ले। बीबी ने
अपनी आंखें बंद की, फिर आंखें खोली, देखा जानमाज पे एक बच्चा है, सजदा किए बैठा है। सलावत पढ़ने पर तो बस अब्बास की विलादत हुई, लेकिन एक तरफ अली के घर में खुशी थी तो दूसरी तरफ कोहराम बर्पा हो गया। उसी वक्त क्या शोर उठा, अब्बास आंखें नहीं खोल रहे। अब्बास ने अपनी आंखें बंद रखी थी, दोनों मुट्ठियों को बंद करा हुआ था। मौला ने अपने हाथ में उठाया, कहा ए अब्बास मुझे अली कहते हैं। अब्बास ने आंखें ना खोली। फिर हसन आए, कहा मुझे हसन कहते हैं, आंखें खोल मैं तेरा भाई हूँ। अब्बास ने आंखें नहीं खोली। फिर बीबी ज़ैनब आती है, कहती है कि ए अब्बास मुझे ज़ैनब कुबरा कहते हैं, आंखें खोल ले। अब्बास ने आंखें नहीं खोली। घर में कोहराम मच गया कि अब्बास आंखें नहीं खोल रहे हैं, हसन एक कोने में रो रहे हैं, ज़ैनब एक कोने में रो रही हैं, अली घर की चौखट पे रो रहे हैं। इतने में हुसैन बाहर से अंदर आए, देखा कोहराम मचा हुआ है। हुसैन ने कहा अमीरों क्या पता गरीब आपस में कैसे बात करते हैं। हुसैन ने अपने गोद में उठाया, कहा अब्बास आंखें खोल मुझे हुसैन गरीब कहते हैं। ये कहना था, अब्बास की आंखों से आंसू जारी हो गया। अब्बास के पैदा होते ही हुसैन ने कहा था आंखें खोल मैं हुसैन हूँ। फिर आखिरी वक्त फुरात के किनारे भी कहा था आंखें खोल मैं तीर निकालूं। तब चलिए मसाइब की तरफ चलते हैं। करबला में कि अब्बास के परचम पर लिखा था नस्रुम मिनल्लाहि वल फतहुन करीम, हुसैन ने उसको मिटाकर लिख दिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब आज जो ना रोए गाजी के मसाइब में, मैं नहीं जानता कितना पत्थर दिल इंसान होगा, क्योंकि अहले बैत का अगर असली मसाइब पढ़ दिया जाए तो मजमे से जनाजे उठने लगे। तो अब गाजी को इजाजत नहीं मिल रही है। गाजी ने सकीना का हाथ पकड़ा, हुसैन के पास आए, कहा ए मौला अब इनकी प्यास नहीं बर्दाश्त होती, मुझे इजाजत दे कि मैं पानी लेने जाऊं। हुसैन ने कहा कि ए अब्बास पहले जा तू ज़ैनब के खेमे में जाके ज़ैनब से इजाजत ले ले, क्योंकि ज़ैनब को तुमसे बहुत आस है। तो अब्बास बड़े ज़ैनब के खेमे की ओर। फिर हुसैन ने कहा अब्बास घोड़े पे बैठ के जा। अब्बास ने हाथ जोड़ लिए, कहा मेरी जुर्रत कि मैं सैयदा की बेटी के खेमे में घोड़े पे बैठ के जाऊं, मैं तो खुद अपने पैर से नहीं चल के जाता। हुसैन ने कहा अब्बास घोड़े पे बैठ के जाओ। तो हुक्म इमाम को मानते हुए अब्बास घोड़े पे बैठते हुए बाहर से ज़ैनब को सलाम किया। ज़ैनब ने खेमे के अंदर बुलाया। जैसे ही ज़ैनब ने अब्बास को देखा, ज़ैनब 3 बार करबला की जमीन पर गिरी है, 3 बार उठी है, फिर वही कहती थी वाह बासा वाह हिजाबा। ज़ैनब ने कहा अब्बास जब कूफे में थे हम लोग, रमजान का महीना था, मेरे बाबा ने कहा था ज़ैनब यही कूफा होगा, तुम्हारे हाथों में रस्सी होगी, तुम्हारे सर पे चादर नहीं होगी। अब्बास फिर मैंने तुम्हारा जलाल देखा था, मैंने यही सोचा था कि जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसके सर से चादर छिन सकती है, लेकिन आज मुझे भरोसा हो गया मेरे सर से चादर छिन जाएगी। फिर ज़ैनब ने मातम किया, फिर ज़ैनब ने अब्बास को विदा किया। फिर अब्बास तैयार हुए जंग के लिए, तलवार ली, तीर लिया, कमान लिया, सारे असलहे लिए, सारे हथियार लिए, बढ़े रन की तरफ। हुसैन ने कहा अब्बास वापस आ। अब्बास वापस आके हाथ जोड़ के खड़े हैं। हुसैन ने तलवार को वापस लिया, नेज़े को वापस लिया, तीर को वापस लिया, एक टूटा हुआ नेज़ा अब्बास को दिया, कहा अब्बास जंग नहीं करनी, कहा अब्बास जंग नहीं करनी। अब्बास ने रो कर कहा मौला मुझे इजाजत दे, मुझे जंग करनी है। मौला इन्होंने मेरे सामने कासिम को मार दिया, मौला मेरी आंखों के सामने उन्होंने मोहम्मद को मार दिया, मैं बताऊं, मैं इनको खैबर का मंजर दिखाऊं कि अब्बास किसे कहते हैं। मौला ने कहा अब्बास जंग नहीं करनी। अब्बास ने कहा मौला मुझे जंग करने दीजिए। मौला ने कहा जंग करनी है। अब्बास ने कहा हाँ। तो हुसैन ने तलवार अब्बास को दी, तीर अब्बास को दिए, कहा जा जंग कर, लेकिन ये याद रखना तुम इनको मारोगे ये ज़ैनब को मारेंगे, तुम इनको तीर मारोगे ये ज़ैनब को पत्थर मारेंगे। अब्बास तुम इनको जितना घोड़े के आगे दौड़ाओगे ये सकीना को घोड़े के आगे दौड़ाएंगे।
कहा अब्बास सकीना मेरी अभी बहुत छोटी है, घोड़े के साथ दौड़ा नहीं जाएगा। तो अब अब्बास ने रो के सारी चीजें वापस की। कहा ठीक है मौला, ये बात है तो जंग नहीं करनी। अब्बास बड़े रन की तरफ। अब्बास जब भी कोई जंग करने जाता था तो अब्बास खड़े होके मौला को पूरी जंग बताते थे। लेकिन अब अब्बास खुद गए हैं, अब्बास के पास अब कोई है नहीं। तो अब देखा खैमे के पर्दे से लिपटी सकीना खड़ी है। हुसैन ने सकीना को बुलाया, कहा ए सकीना टीले पे खड़ी हो जा और मुझे बस ये बता दे अलम कहाँ जा रहा है, मुझे ये बता दे अलम कहाँ जा रहा है। सकीना टीले पे खड़ी होकर कहने लगी, बाबा मेरा चचा फौज में घुस गया, बाबा मेरा चचा ने फौज से सारी फौजें भाग गई, दरिया से सारी फौजें भाग गई हैं, बाबा मेरे चचा ने दरिया पे कब्जा कर लिया। सकीना के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। हुसैन ने देखा थोड़ी देर बाद सकीना का चेहरा सफेद हो गया। सकीना ने कहा बाबा मेरे चचा का बायां बाजू कट गया, बाबा मेरे चचा का दायां बाजू कट गया। कितना कहना था। हुसैन बड़े अब्बास के लाशे की ओर। हुसैन कैसे गए हैं? अब रास्ते में कोई हुसैन को नेज़ा मार रहा है, कोई तमाचा मार रहा है। ये मलाउन नाच के कहते थे कि हमने तेरा गाजी मार दिया, हमने तेरा अब्बास मार दिया। अब हुसैन पहुंचे गाजी की लाश पे